الدین صاحب سے گزارش کروں گی، اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. حالانکہ آپ سب لوگ ان کو بخوبی جانتے ہیں. صفی الدین صاحب اس علی گڑھ کے کنبے سے 1997 سے معروف ہیں، اور یہاں اموبا میں وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. جناب صفی الدین صاحب، پلیز گیو اے راؤنڈ آف اپلاز ٹو جناب صفی الدین صاحب. ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید چل مگر، ہوگا کسی فلک پہ وہ خورشید جل وگر، کہتے ہیں آفتاب کبھی ڈوبتا نہیں. عزت مآب جناب سلمان خورشید صاحب، دیگر مہمانان، عزیز ساتھیوں، بانی درسگاہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی 207ویں یوم ولادت کے موقع پر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. حاضرین، 1857 کے وقت مسلمانوں کی حالات پر غور کیجیے. مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا. مسلمانوں کی قسمت کے ستارے سیاہ بادلوں میں روپوش ہو چکے تھے. انگریز مسلمانوں سے غدر کا بھرپور انتقام لے رہے تھے، جس کے واقعات تاریخ کے صفحات میں خون سے لکھے گئے. ان حالات میں ایک مرد مومن اٹھتا ہے اور اپنی قوم کو جگاتا ہے. اسے اپنی قوم کی تباہی زبوحالی نہ راتوں کو سونے دیتی ہے، نہ دن میں چین سے بیٹھنے دیتی ہے. یہ مرد مومن اپنی قوم کے ہاتھوں میں تلواروں کی بجائے قلم دیتا ہے اور میدان عمل میں صفا پستہ کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. ایک طرف قوم کو جھنجھوڑتا ہے اور دوسری طرف اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر اقتدار انگریزوں کو حقائق سے روشناس کرتا ہے. مگر افسوس کہ اس کی بدقسمت قوم اس پر الزامات کے انبار لگاتی ہے اور مفاد پرست کہتی ہے. اتنے تانوں اور فتووں کے باوجود اپنے مشن پر جمے رہنے کی ہمت سر سید جیسے مرد باحوصلہ میں ہی تھی. حاضرین، سر سید کا مشن کیا تھا؟ ان کے قوم کو دقیانوسی خیالات میں الجھے رہنے کے بجائے جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو، سائنس کے میدان میں آگے بڑھے اور دوسری قوموں کے برابر کھڑی ہو جائے. اور تاریخ گواہ ہے، انہوں نے اس عظیم مشن کی خاطر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، درد درد کی ٹھوکریں کھائیں، ذلتیں سہیں، مگر قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے جس عظیم ادارے کی تعمیر کا خواب دیکھا تھا اسے مکمل کیا. خواتین و حضرات، سر سید کی شخصیت مختلف اوصاف کی حامل تھی. وہ ایک اعلیٰ مصنف، مخرب، مفسر قرآن، بلند پایہ انشاء پرواز، ماہر تاریخ اور سیاستداں بھی تھے. سر سید نے قلم و عمل سے زندگی کے تمام شعبوں پر لافانی نقوش چھوڑے.
सर सईद ने उस दौर की दम तोड़ती सहाफत को तहज़ीबुल अखलाक के जरिए नई जिंदगी दी और ज़बान व अदब, इश्क व माशूक़ की भूल भुलैयों से निकाल कर कौमी इस्लाह का काम किया। मुसलमानों के अंदर साइंसी रुझान पर फ़रोग़ की खातिर साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और इल्म के तिश्ना लबों के लिए गिरा कदरी सरमाया छोड़ा। हाज़रीन, बानी दरगाह ने उस तारीकी में एमयू कॉलेज की शक्ल में जो चिराग जलाया था, आज उसकी रोशनी दुनिया के तारीक गोशों को मुनव्वर कर रही है। सर सैयद ने जो पौधा लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त बनकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सूरत में नजर आ रहा है। जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जहां बानी से है दुश्वार तरकारे जहां बीनी, जिगरे खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, जिगरे खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हजरात, आज जब हमको बानी दरगाह का यौम विलायत मना रहे हैं, जो ज़रूरत इस बात की है कि उनके उस ख्वाब को याद करें जो उन्होंने बेदारी के आलम में देखा था। तालीमी और सियासी एतबार से एक तरक्की याफ्ता कौम का ख्वाब। हाज़रीन, बानी दरगाह के इस ख्वाब को मद्देनजर रखते हुए अपनी कौम की तालीमी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर कीजिए। आखिर क्या वजह है कि अलीगढ़ तहरीक की मुमताज कामयाबी के बावजूद हमारी कौम तालीम के मैदान में सबसे पीछे है? आखिर क्या वजह है कि मैदान सियासत में इस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं? कौम की एक बड़ी आबादी आज भी गुर्बत व इफलास की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये कहना बेजा न होगा कि मौजूदा हालात फिर से ज़माना गदर की याद दिलाते हैं। फर्क बस इतना है कि उस दौर ने सर सैयद जैसा मुखलिस हमदर्द कौम पैदा किया था, जिसने कौम की इस्लाह के बाद अपने मजबूत कांधों पर उठा लिया था। मगर आज हमारे दरमियान सर सैयद जैसा अजीम कायदे रहनुमा नजर नहीं आता। मगर उम्मीद की एक किरण जरूर नजर आती है। अगरचे सर सैयद नहीं, मगर इनकी दरगाह से तरबियत याफ्ता हजारों लाखों अफराद दुनिया के कोने कोने में जो मौजूद हैं, जो कि सर सैयद के मिशन को जानते भी हैं और समझते भी हैं और उससे अपना ताल्लुक का इजहार भी करते हैं, अगर ये अफराद, ये अली बिरादरी, ये चमन सर सैयद के मतवाले ठान लें तो कौम की इस कश्ती को घोर से निकाल कर साहिल पर मिला सकते हैं। ए मुहिब्बीन सर सैयद, आज जरूरत इस बात की है कि हम बानी दरगाह के मिशन को याद करें और जो कोशिश उन्होंने सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ तहरीक को लेकर आगे बढ़े, तब हम भी सर सैयद के सच्चे जानिशीन कहलाने के लायक होंगे। अब मैं अपनी बात हजार ने तमन्नाओं और इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। तारीकी दिल अब तो बहरहाल मिटेगी, तारीकी दिल अब तो बहरहाल मिटेगी, हम शमा मोहब्बत की जलाने में लगे हैं, गुलशन में बहार आएगी फिर लौट कर लोगों, गुलशन में फिर बहार आएगी लौट कर लोगों, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं, हम सहरा को फिरदौस बनाने में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन,
प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मोहम्मद अयूब शबाब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए। प्रोग्राम का अब मैं इस खूबसूरत प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस खूबसूरत बंद को जनाब अयूब शबाब के सुपुर्द करता हूँ। अयूब भाई ने 1978 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिंटो सर्किल से 9th क्लास में एडमिशन लिया और 1990 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और आप काफ़ी अरसे तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर भी रहे और 1992 से +2 बॉयज़ में अभी तक उस्ताद की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन 4 साल AMU +2 टीचिंग स्टाफ के प्रेसिडेंट भी रहे। हालियन अयूब साहब अल्लामा इकबाल के प्रोवोस्ट हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जनाब अयूब शबाब साहब बहुत मोहब्बतों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।